Hello बच्चों, welcome to Vidya Aradhana Academy. My name is Pondaganti Santosh Kumar. Today we are going to discuss JEE Advanced 2021 Paper 1 Chemistry solution देखेंगे आज. Okay, so this year paper anyway IIT paper बोले तो advanced paper बोले तो it's somewhat पूरा mixed concept oriented देता है. Individual चार से questions नहीं आता है बेटा. So in this session में I am going to discuss the paper 1 only. So paper 2 already other teachers already discuss किया. So paper 1 में discuss कर रहा हूँ. इसमें some part of questions I am going to discuss. Remaining part of questions other teacher will discuss. Okay? Okay beta, without time waste I am going to start first one. The section 1, it is a 4 sections. So 4 sections में section 1 में देखो. So total in this section we have 6 questions. And each questions actually 4 options, and it is a not single correct answers, it is more than one answer. So it is a partial marks भी है, and also correct answer रहे तो suppose if you 3 options correct है, so 1 option correct रहे तो partial marks देता है, negative करे तो negative marking भी है. So that is only. So this is the section 1 में देखो बेटा here. This is the organic chemistry. देखो organic chemistry entirely conversion based questions only आ गया. So इसमें देखो बेटा it's a benzene derivative compounds here. Benzene derivative compounds. इधर let us see here. Let us take here. Red pen I am using. So NaNO2 plus HCl copper cyanide. So already आपको पता है इधर NH2 बोले तो क्या है. सो इधर NH2 NaNO2 रिएक्ट करे तो आपको मिलेगा क्या. पहले फर्स्ट ये बिट मैं कर रहा हूँ देखो. सो पहले इट इज गोइंग टू CH3, इधर NH2 इसके साथ रिएक्ट करे तो पहले इट इज कन्वर्टिंग इनटू क्या होता बेटा. सर इट इज अ कंपल्सरी कन्वर्शन मीन्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है ना एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड. इधर मेंशन नहीं किया बट लेकिन आपको मिलेगा NaNO2 plus HCl, you will get, so NH2 become N2 plus Cl minus. Then after that copper cyanide, so it is a Gattermann reaction, copper CN and Sandmeyer reactions, all these. देखो this is copper plus and Cn minus, so N2 is replaceable by the Cn. So nucleophilic substitution reaction it is Cn. Then after that diol H, it is a mild reducing agent beta. So mild reducing agent बोले तो diol H react करे तो आपको मिलेगा diol H. So Cn के react करके आपको मिलेगा. So Cn is converting into aldehyde. Okay, Cn is converting into aldehyde. After that they are using NH2KOH. मतलब इधर क्वेश्चन क्या पूछा है, आर्थोजाइलिन देखना. सो एवरी ऑप्शन वी नीड टू सी कंपल्सरी सो दैट इधर NH2 हाइड्रोजन एंड KOH ऑन हीटिंग मतलब क्या है. इधर वोल्फ किश्नर रिडक्शन दिया, वोल्फ किश्नर रिडक्शन. ओके, सो वोल्फ किश्नर रिडक्शन मतलब क्या है. इधर इट इज रिड्यूसेस, ऑक्सीजन इज रिड्यूस बोले तो इधर C डबल बॉन्ड बिकम CH होता है. So it is reduces to alkanes generally. So finally you are getting xylene only, orthoxylene. So first option no doubt at all it is giving the xylene. Okay, understand. So next देखेंगे सब B option also देखेंगे. So I will rough here. Next one here ऑप्शन बी देखेंगे. सो ऑप्शन बी क्या दिया देखो इधर मैं कर रहा हूं. सो पहले इट इज अ मैग्नीशियम कार्बोनेट दे ले तो ब्रोमीन. सो पहले ग्रिग्नॉड रिएजेंट CO2 के साथ एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस बोले तो आपको मिलेगा. सो मिथाइल एंड MgBr. सो MgBr बोले तो ग्रिग्नॉड रिएजेंट तैयार होता है. सो ग्रिग्नॉड रिएजेंट बोले तो MgBr. Then after that CO2. So Mg plus Ca करे तो आपको मिलेगा. What is the product here? So methyl and carboxylic acid तैयार होता है.
एंड बाद में आपको दिया क्या है बेटा, SOCl2, सो CH इज कन्वर्टिंग इनटू C डबल बॉन्ड Cl, ठीक है। नाउ OH इज रिप्लेसेबल बाय द Cl। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट H2 पैलाडियम दिया, दिस इज आल्सो द नेम्ड रिएक्शन ओनली, रोजनमंड रिडक्शन। सो H2 पैलाडियम दे तो बेरियम सल्फेट बोले तो इट इज, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू aldehyde ओनली, सो मिथाइल एंड हियर CHO। अगेन आपको जिंक अमलगम क्लेमेंसन रिडक्शन दिया बेटा, क्लेमेंसन रिडक्शन, सो क्लेमेंसन रिडक्शन दिया, सो CHO इज कन्वर्टिंग इनटू इधर CH3 एंड CH3, दिस इज आल्सो ऑर्थोजाइलिन आ गया, ऑर्थोजाइलिन। सो ऑप्शन B also correct, B also correct. So next one we will see here, so I will rough here beta, okay, next one. So option B देखेंगे, option B क्या आता है देखेंगे। So option B, let us see here, option B पहले हाइड्रोबोरेशन दिया, so हाइड्रोबोरेशन followed by oxidation, मतलब क्या है, it is giving हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय बोले तो एडिशन ऑफ BH3 एंड फॉलोड बाय हाइड्रोबोरेशन, इट इज फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सो पहले आपको मिलेगा सो मिथाइल एंड हियर BH2 प्लेस में OH आता है, एंटी मार्कोनिकॉफ प्राइमरी अल्कोहल, बाद में आपको Br3, सो बोले तो इट इज न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन बोले तो क्या आता है आपको, इधर मिथाइल एंड हियर Br, followed by zinc HCl बोले तो no doubt at all Br is replaceable by the hydrogen, so आपको मिलेगा, it is not दो कार्बन्स anyway, easily हम eliminate कर सकते, ये इधर आने के बाद you can easily पता चलता आपको मिथाइल नहीं आता है, so ऑप्शन C नहीं आता है बेटा, C नहीं आता है। so next one D देखेंगे, so पहले ओजोनोलिसिस बोले तो ये हटा दो, सो आपको मिलेगा सो आल्डिहाइड एंड हियर आपको ये भी आता है, सो देन देखो बेटा, दिस इज वन मोर कार्बन, दिस कार्बन एंड आल्डिहाइड, सो अगेन देखो फॉलोड बाय N2H4KOH बोले तो इधर आपको ये बिकम CH3 होता है ना, CH3 होता है, सो ये भी आपको नहीं मिलेगा, सो आंसर शुड बी A and B, आंसर शुड बी A and B, ओके बेटा, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओके, आंसर इसका क्या है, ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस इन द रिएक्शन, सो ऑलरेडी ऑप्शंस भी प्रोवाइड किया, सो करेक्ट ऑप्शन बोला था, सो व्हाट इज द पहले इसका रिएक्शन यू हैव टू डू, सो इधर हिंट्स पहले पकड़ना है बेटा, सो इट इज अ कन्वर्शन ओरिएंटेड, इधर आपको मिलेगा क्लोरोफॉर्म एंड CHCl3 बोले तो किधर यूज करते जनरली बेटा, कार्बाइल टेस्ट में यूज करते, सो कार्बाइल टेस्ट बोले तो इधर मे बी प्राइमरी एमाइन, एक्चुअली वन मोर हियर क्लोरोफॉर्म KOH में आल्सो इट इज रीमन-टाइमन रिएक्शन में आल्सो यूज को, सो दैट टाइम आपको प्राइमरी अल्कोहल भी सो मीन्स फिनोल भी आ सकता है, ये रेज, बट लेकिन आपको फ्यूल स्मेलिंग बैड स्मेलिंग बोले तो इट इज कंपल्सरी, मे बी इधर प्राइमरी एमाइन से ऐसे स्मेल आता है, सो दैट इज ओनली वन हिंट दिया था, सो ऑलरेडी आपको रिएजेंट्स दिया ना, सो बेस्ड ऑन रिएजेंट इजीली आपको पता चलता, इधर देखो आपको यू कैन गो थ्रू एनीवे, सो P इधर क्या पूछ रहा है, क्या क्या दे, Q वी नीड टू फाइंड आउट करना कंपल्सरी, एंड W भी आप फाइंड आउट करना है, सभी ऑप्शन देखना पड़ता है, सो दैट मैं क्या करता हूँ वन बाय वन मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। सो पहले मैं क्या किया था, पहले हिंट पकड़ा था मैं, बोले तो इधर मे बी प्राइमरी एमाइन एंड फिनोल, बिकॉज ऑफ क्लोरोफॉर्म रिएजेंट ऑलरेडी नेम्ड रिएक्शन में यूज करता है, सो क्लोरोफॉर्म KOH बोले तो रीमन-टाइमन रिएक्शन सालिसाल्डिहाइड तैयार होता है, एंड प्राइमरी एमाइन क्लोरोफॉर्म यूज आइसोसाइनेट, सो मे बी दिस मे बी आइसोसाइनेट हो सकता है, देखेंगे while taking this by using these reagents also. So पहले let us take here phenyl CH3, so इसको हम ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन एंड लाइट,
सो ब्रोमीन एंड लाइट बोले तो इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बेटा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द हाइड्रोजन रिप्लेस करो, रिप्लेस करे तो आपको CH2Br आता है, देन दिस इज P आ गया, सो P अगेन रिएक्ट विथ क्या है बेटा? Q, बट लेकिन वी डोंट नो Q। मैं क्या करता हूं बेटा, सर दिस इज Q फाइंड आउट करने के लिए, Q फाइंड आउट करने के लिए ये भी मैं यूज करता हूं KMnO4 फॉलोड बाय KOH फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस दिया तो द CH3 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सो इट इज बिकम COOH। नाउ बाद में इट इज NH3 एंड हियर nucleophilic substitution reaction OH is replaceable by the NH2, so nucleophilic substitution reaction, so CONH2. Okay, now one more important, this is also reducing agent use किया, compulsory is the reduced product only, so W should be क्या होना चाहिए? reducing agent होना चाहिए। इधर W क्या, ये only option here लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, कंपलसरी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, बिकॉज इधर भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करे तो ये आ गया, ये भी कंपलसरी रिड्यूसिंग एजेंट होना है। सो ऑलरेडी पॉसिबल है, देखो इधर नाइट्रोजन कंटाइनिंग कंपाउंड्स आ गया, इधर हिंट आ गया ऑलरेडी, देखो ये नहीं हो सकता है क्योंकि इधर रिड्यूसिंग एजेंट देखो इधर नाइट्रोजन कंटाइनिंग कंपाउंड आ गया ना, सो कंपलसरी इधर आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यूज करे तो आपको मिलेगा फिनाइल CH2NH2 आता है, प्राइमरी एमाइन आ गया, सो इट शुड बी W शुड बी क्या होना चाहिए? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ओके, नाउ इधर Q क्या होना चाहिए सर? इधर आपको ये फिनाइल W यूज करने के बाद दिस इज R, सो इधर R आने के लिए इधर Q क्या होना चाहिए? कंपलसरी इधर ये Br इज रिप्लेसेबल बाय फॉलोड बाय रिडक्शन, सो इधर AgNO2 यूज करो, AgNO2 यूज करो, सो AgNO2 यूज करे तो आपको मिलेगा CH2NO2 मिलेगा, फॉलोड बाय रिडक्शन बोले तो, फॉलोड बाय रिडक्शन बोले तो इट इज H2 पैलेडियम कैटलिस्ट, सो इट इज अ रिडक्शन, सो NO2 बिकम अगेन आपको मिलेगा NH2 मिलेगा, राइट? सो दिस इज नथिंग बट फाइनली आपको R is produced by using this mechanism, this reagent से ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, so इधर hint is very easy, इधर nitrogen containing compound only, so anyway R आपको मिलेगा, R आ गया, this is also आ गया, and one more here आप इधर lithium aluminum hydride बोले तो compulsory it should be W, इधर Q AgNO2 compulsory Q use करना पड़ता, it is a Q, and one more thing here, इधर से आपको क्लोरोफॉर्म कार्बोलामाइन टेस्ट, राइट? सो कार्बोलामाइन टेस्ट बोले तो आपको NH3 बिकम, सो इधर CH2NC आइसोसाइनेट, सो इट शुड बी यस, सभी आ गए ना, देखो बेटा, सो P आ गया, दिस इज Q आ गया, एंड U क्या है? U शुड बी दिस वन, U शुड बी दिस वन, सो R शुड बी, सो इधर QKNO2 होता है, सो KNO2 यूज करे तो आपको ONO आता है, बट AgNO2 यूज करे तो आपको NO2 आता है, सो ये शुड बी नहीं होता है, एंड इधर देखो VAgCN, KCN यूज करे तो ये आता है, AgCN यूज करे तो आइसोसाइनेट आता है, सो D कंपल्सरी को ये होना चाहिए, सो V कैसा होता है? P ऑलरेडी आपको पता है, व्हाट इज अ P? इधर P से आपको डायरेक्टली आइसोसाइनेट आने के लिए कंपल्सरी सिल्वर साइनेट यूज करे तो आपको आइसोसाइनेट आता है, दिस इज अ हिंट आल्सो, सो ये करेक्ट है। R क्या हो गया? बेंजीन एमाइन, बेंजाइल, बेंजीन फिनाइल, ये नहीं होता, देखो R फिनाइल मिथाइल एमाइन ना, सो ये करेक्ट है। Q क्या है? AgNO2, सो ये C करेक्ट होता है, D करेक्ट होता है, सो ये भी गलत आंसर, सो आंसर शुड बी CD, आंसर शुड बी CD। ओके, समझ में आ गया ना? सो दिस इज द लाइक वी हैव टू पहले क्या देखना है, क्या क्या रिएजेंट्स दिया, क्या हिंट्स है, वो पहले पकड़ना है, बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू करना पड़ता। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा, सो वेरी दिस इज इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेटा।
सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में दिया था. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दी IIT एडवांस के लिए एंड एनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए. सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से कंपलसरी क्वेश्चंस आता है. सो दिस इज कंसेप्शनल. देखो बेटा इधर बोथ एग्जिबिट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कब पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहे तो. कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहे तो आपको sp3 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, dsp2 हाइब्रिडेशन पॉसिबल है और sp2d पॉसिबल है. सो sp2d बोले तो क्या है? इट इज ए स्क्वेयर प्लेनार ज्योमेट्री. स्क्वेयर प्लेनार ज्योमेट्री आता है. सो बट आस्किंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोले तो आपको पता होना चाहिए बेस्ड ऑन द VBD थ्योरी वी नीड टू फाइंड आउट कर सकता है हाइब्रिडेशन. सो नाउ इधर बेस्ड ऑन द वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. इधर देखो सो Cl CO copper Cl4 plus this. देखो दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड, these are strong field ligand, these are also strong field ligand and this is strong field ligand. देखो पहले देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे. सो Fe -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन, राइट? सो एक्चुअली Fe +3. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली Fe का? Fe is 26 ना. सो एनीवे आर्गन 18 आता है. सो 4s2 3d6 आता है, isn't it? 3d6. नाउ Fe +3 बोले तो आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो. सो Fe +5. सो Fe +3 बोले तो 4s0 3d5 आता है, 3d5 आता है. सो इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड बेटा. सो इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड. सो वीक फील्ड लिगेंड बोले तो d5 कंप्लीटली फिल ऑफ. देखो दिस इज completely fill होता है. So 4s is vacant orbital and p orbital also vacant orbital, right? Now either chlorine can be donating lone pair of electrons like this. So पूरा 1 s orbital 3 p orbital मिलके आपको sp3 hybridation आता है. So no doubt that this is sp3 tetrahedral geometry. So next इसमें Fe also देखेंगे. So इधर Fe -2 ना. देखो न्यूट्रल, इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड, राइट? सो बोले तो Fe -2. एक्चुअली सेम थिंग. Fe -2 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. सो आर्गन 18 एंड 3d6 बिकम 3d8 होता है 4s2. सो इधर CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. कंपल्सरी पेयरिंग टेक्स प्लेस हियर. पेयरिंग टेक्स प्लेस करे तो सो दिस s इलेक्ट्रॉन 3d8 को आता है. सो आपको 3d10 4s0 होता है. सो ये कंप्लीटली फिल हो गया, कंप्लीटली फिल हो गया. सो d ऑर्बिटल यूटिलाइज नहीं करता है हाइब्रिडेशन के लिए. सो 4p ऑर्बिटल रहता है. सो 1 s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल. सो मिलके आपको मिलेगा sp3 हाइब्रिडेशन. सो sp3 हाइब्रिडेशन बोले तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. सो आंसर ये शुड बी रहता है. इट इज अ मल्टी आंसर बेटा. सो आपको ये करेक्ट आ गया. ये भी वीक फील्ड लिगेंड, नो डाउट इट इज वीक फील्ड लिगेंड, तो नो पेयरिंग, ऑटोमेटिकली sp3 आता है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग होता है, दैट्स व्हाई वी नीड टू डू. सो दैट इज हिंट. सो ये मैं रफ करता हूं बेटा. देखो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सो थोड़ा ये करना पड़ता है कंपल्सरी, बट लेकिन आप प्रैक्टिस करें तो इट इज वेरी इजी. बट लेकिन समटाइम मिस्टेक भी हो सकता है, इसीलिए करना पड़ता है. सो कोबाल्ट बी देखेंगे. कोबाल्ट एक्चुअली इट इज अ 27, अटॉमिक नंबर 27. सो 27 बोले तो आपको मालूम है 4s आर्गन 18. सो 4s2 3d7. सो इधर कोबाल्ट व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? -1 बोले तो आर्गन 18 4s2 बोले तो आई कैन राइट पहले 3d1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 3d8 एंड 4s2. सो इधर देखो कोबाल्ट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. सो दिस 2 इलेक्ट्रॉन आल्सो इधर जाता है. सो दैट टाइम 3d10 होता है 4s0 एंड 4p0. सो 1 s ऑर्बिटल 4p ऑर्बिटल मिलके sp3 हाइब्रिडेशन होता है. इट इज आल्सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. सो ये करेक्ट आ गया, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गया. नेक्स्ट वन, कोबाल्ट इज अ वीक फील्ड लिगेंड. सो वीक फील्ड लिगेंड बोलो तो नो पेयरिंग, ऑटोमेटिकली इट इज sp3 आना चाहिए. देखो लेट अस टेक हियर कोबाल्ट -2.
इधर -1 इधर -2, बोले तो ऑटोमेटिकली क्या होता बेटा, इधर D8 4s, sorry not -2, it is a cobalt +2, right, cobalt +2, cobalt +2 बोले तो argon 18, so इधर 3d7 and 4s0 होता है, बिकॉज ऑफ +2 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है कोबाल्ट का. So it is a weak field ligand, so there is no pairing, so only it is utilizing D7 बोले तो देखो, so 1 2 3 4 5, so 3 4 5 6 7, so there is no pairing, odd number of electrons, even though pairing करे तो भी it is odd number of electrons होता है, so 4s इधर रहता है and 4p, so weak field ligand वजह से there is no pairing, so it is utilizing this 1 s orbital 3 p orbital, it is going to sp3 हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होता है. सो ये ऑप्शन भी होता है, ये ऑप्शन भी होता है. नेक्स्ट वन, सो आई विल रफ हियर, देखो नेक्स्ट वन सी ऑप्शन देखेंगे. सो व्हाट इज द सी ऑप्शन हियर, सो सी हियर निकिल कोबाल्ट, it is a strong field ligand. First of all, it is a strong field ligand. Sir, it is a weak field ligand रहे तो simple hint बेटा, coordination number 4 रहे तो इधर दो पॉसिबिलिटी है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे तो इट इज अ DsP2 हाइब्रिडेशन होता है, वीक फील्ड लिगेंड रहे तो इट इज एक्चुअली sp3 हाइब्रिडेशन व्हेन निकिल +2 केस में. देखो बोथ आर निकिल +2, वन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, दिस इज आल्सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोथ आर स्ट्रॉन्ग, बट लेकिन इट इज sp3 हाइब्रिडेशन होता है बिकॉज निकिल 0. इधर दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या बोला, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग फील्ड बोले तो इट इज अ DsP2 हाइब्रिडेशन. इवन इफ यू सी 1 में ये ओनली चालू करते देखो 3d8 4s0 होता है. सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वजह से देखो इधर हाउ मेनी 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. सो नाउ क्या करना है, कंपल्सरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे तो सो कंपल्सरी पेयरिंग करना है बिकॉज ऑफ Cn is strong field ligand, so pairing takes place. So then what happened, one of the d orbital become vacant होता है, so you can write here, so 1 vacant d orbital, 3 p orbital, 1 s orbital, so 1 d orbital 2 b, so DsP2 hybridation. So इधर पूछ रहा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये नहीं होता है, C नहीं होता है. सो नेक्स्ट वन वी हैव टू सी, दिस इज कॉपर +1. देखो इट्स अ सिंपल हिंट हियर, D8 D9 D10 कॉन्फ़िगरेशन, वेदर वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जनरली इट इज sp3 हाइब्रिडेशन. ये हिंट रहे तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं ऐसा. बेस्ड ऑन दैट हिंट से यू कैन इजीली डू दिस प्रॉब्लम विदाउट doing all this. Anyway, I will explain you. So copper +1 here oxidation state, okay, so then it is actually 3d10 4s0 because +1 oxidation. So 310 बोले तो almost d orbital involve नहीं होता है because vacant orbital रहे तो hybridation में involve होके the vacant orbital accepting electron from the ligands, so that इधर d10 configuration रहे तो no doubt at all it is a sp3 hybridation. So इधर also copper कितना है, it is a +1 oxidation state only. So even this is also D10 configuration, so no doubt at all D10 configuration आया तो it is sp3 hybridation. So except C, the ABD is correct answer होता है, ABD are correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. So these are actually एडवांस क्वेश्चन में सभी ऑप्शंस अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है, सब मिस्टेक्स भी कर सकते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको मालूम रहे तो. सो विच इज वीक फील्ड लिगेंड, विच इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सम इफ यू नो दिस hints also, even D0 configuration, D1 configuration, D2 configuration, D3 configuration. So इसमें either weak field ligand और strong field ligand में आपको sp3 hybridation आता है, either weak field ligand or strong field ligand. So ये hints use करके also you can able to do this. Okay, so first of all whether it is D1, D2, D3 or D6, actually pairing कब होता है, D4 से चालू होता है, D4, D5, D6, D7 में
पेयरिंग टेक्स प्लेस. ये हिंट्स आपको मालूम रहे तो यू कैन डू एनी प्रॉब्लम इजीली, हाइब्रिडेशन इजीली फाइंड आउट कर सकता है. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन. द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस. दिस इज अ पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली में दिया था. सो वेरी इजी, इधर प्रॉपर्टीज ऑफ H3PO3 एंड H3PO4 बारे में दिया था. सो फर्स्ट स्टेटमेंट ओरिएंट क्वेश्चन, इट इज अ करेक्ट आंसर देखना पड़ता. अपॉन हीटिंग H3PO3 अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन? सो डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब it is the same element will undergo both oxidation and reduction. So let us take either H3PO3. So 3 moles if you take here, 4 moles of H3. देखो H3 पे बैलेंस करने के भी जरूर नहीं है. So let us take H3PO3. Either it is undergo disproportionation, it is undergo disproportionation. So produce already H3PO4 दिया and PH3. सो दिस इज करेक्ट और नॉट? पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट वजह से बोल सकते डिस्प्रोपोर्शनेशन बोले तो. सो एनीवे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? इट इज अ -6. सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. इधर कितना होता है? इट इज +5. इट इज 8 - 3. सो इट इज अ +5. सो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस. सो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, इट शुड बी ऑक्सीडेशन. इट शुड बी ऑक्सीडेशन. Same either what is the oxidation state? Either -3 oxidation state, oxidation number decreases. So matlab it is a reduction. Reduction. So either also element phosphorus, either also elements phosphorus. So either +3 oxidation state during conversion of H3PO3 to H3PO4, your oxidation state of the phosphorus +3 to +5 and +3 to -3. So ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है. सो सेम एलिमेंट विल अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. उसको हम क्या बोलते? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते. सो दैट, सो फर्स्ट ऑप्शन नो डाउट एट ऑल, इट इज अ करेक्ट आंसर ओनली. एंड सेकेंड, व्हाइल H3PO3 कैनॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कैन एक्ट और नॉट कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड H3PO4 कैनॉट. देखो ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +5. So group number is equal to number of valence electron in the phosphorus 5, 15th group element. So further oxidation नहीं होता है. So reducing agent बोले तो itself it is oxidation. So +5 become +6 नहीं होता है. It's possible नहीं है. Higher oxidation state में already है. So higher oxidation state is not able to act as a reducing agent. Reducing agent बोले तो itself it is oxidation. But लेकिन H3PO3 +3 oxidation state, so it can be converting into oxidation हो रहा है ना. So itself it is oxidized. बोले तो it is act as a reducing agent. They act as a reducing agent. So option B is also correct. H3PO3 is a monobasic acid. So let us see here. And one more thing. If you take the phosphorus here, H3PO3, if you write here, structure कैसा रहता है पहले लिखो. सो कंपलसरी एक इज अस एसिड, फास्फोरस एसिड. कंपलसरी फास्फोरस एसिड के लिए पीएच बॉन्ड्स रहता है एंड हियर OH एंड OH. सो दीज आर एक्चुअली पीएच बॉन्ड वजह से इट इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट. एंड इधर H3 इज मोनोबेसिक एसिड पूछा है. सो बट लेकिन इट इज अ डाइबेसिक एसिड. सो इट शुड बी आंसर रॉन्ग है. एंड नेक्स्ट, द हाइड्रोजन आटम ऑफ पीएच बॉन्ड इन H3PO is not ionizable in water. So the hydrogen atom of the pH bond in H3P not ionizable in water. So these two are ionized होता है, but लेकिन it is pH bond, it is not directly phosphorus को less electronegativity element को attach हो गया. So these are in water में करे तो आपको मिलेगा pH and O minus and O minus. So it will be ionized. So this option is also correct. So answer should be A, B and D. So did you understand or not? So like that you can easily, so entirely it is a direct question, it is a NCERT based question. So NCERT में also सभी concepts दिया था. So based on NCERT and based on the structure of H3PO3, H3PO4, it is a mixed concept, redox reactions. Okay. Next question will go. So section 3 में जाएंगे पहले. So this section 3 में it is a 2 paragraphs are
each paragraph contains 2 questions, each question has 4 options, only in these 4 options may only one of the 4 option is correct, only one single correct answer. This is very easy to understand, easily we can. So either for each question देखो full marks plus negative marking is there, so -1 here, there is no partial marks only for multiple correct answer के लिए. Okay, let us start here, the questions देखेंगे. So इसमें I am going to discuss the paragraph is given, so based on this information is a very help होता है. So this information से, so this is useful information, sometime based on the questions वजह से we can utilize this information. So पहले देखेंगे question क्या दिया था पहले, तो matching दिया था, correct matching. Here correct matching also matrix single correct matching only. So very easy to identify single correct. Either they are given some dissociation energies, bond dissociation energy. So either we need to find out the which is having, देखो either this is hydrocarbons, alkene and alkane. Either already some hint दिया था, bond dissociation is affected by the S character. So बोले तो S character ज़्यादा रहे तो bond break करने के लिए ज़्यादा energy जरूर पड़ता है. So that ये बहुत help होता है, you can do this. So suppose here देखो बेटा, which will form more stable free radical, that is less bond dissociation energy होता है. So most देखो इधर we have alkenes, alkane this is a dissociation बोलते free radical form करता है. So in the P if you see here, it is if you remove this one hydrogen, देखो already bold किया था, so it is so secondary free radical, and the Q will be benzyl free radical. This is the base benzyl free radical. It is stabilized by the resonance, and R will be, it is alkane से hydrogen remove करने के लिए less energy जरूर पड़ता है, but लेकिन double bonds and triple bonds से bonds remove करने के लिए ज़्यादा energy is required. So that, so you can use R, so either double bond free radical, because percentage of S character will be more when compared with alkanes. So S में it is also triple bond free radical, so either more percentage of S character. So percentage of S character increases and bond dissociation energy also increases. Already paragraph में already दिया था. So either sp hybridation, this is sp2 hybridation, so that more energy should be S को रहता है, so more energy should be, this is 1. इधर one option किधर है, only one, this is only S1, which is least energy, Q least energy, because of more stable, this is a more stable, less bond dissociation energy. Either least stable, high bond dissociation energy. So that either simply this is only option ये only correct होता है, so P3 Q4 होता है, so Q4 क्यों, because there is a less bond dissociation energy. So which is less, which is low. So anyway this is the easy to find out sir, based on ये concept मालूम होना चाहिए. So which is more stable free radical form करते हैं उसको bond dissociation energy कम रहता है, which is stable molecule बनता है, so easily bond break हो सकता है. So that means it is require less bond dissociation energy. So that easily we can find out the answer based on this one. Okay, and here some, either we have given some information here. So either CH4 here, light CH3. So for correct statement is, this is a free radical substitution reaction here. This is a free radical substitution reaction. So their correct statement is asking, क्या बेटा? Correct statement. So generally here initiation steps देखो, free radical substitution reaction में generally by using peroxide, light if you see here mechanism में Cl free radical, if you light observe कर the homolytic fission में, so 2 moles of Cl free radical form होता है. So that either this is a endothermic reactions, bond dissociations compulsory endothermic reaction, either exothermic reaction दिया, so automatically this is a गलत है.
सो दिस इज चाइन इनिशिएशन स्टेप में ये फॉर्म होता है, बाद में चाइन प्रोपगेशन स्टेप में यू आर गेटिंग CH4 is react with Cl free radical, then again it is forming CH3, इधर we have CH3 free radical फॉर्म होता है and HCl फॉर्म होता है. So then this CH3 free radical again Cl2 के साथ रिएक्ट करके CH3Cl as well as Cl free radical form होता है. This is also bond dissociation only. इधर free radicals are producing, मतलब the compulsory these are endothermic reactions only. So the propagation step is involving CH3 free radical formation, okay, formation, but लेकिन we have to break the bond, CH bond break करना पड़ता है. So bond dissociation, so formation of exome with 2 calories. So that this is also propagation endothermic reaction होता है. So this is not exothermic reaction. And propagation step is involving CH3Cl formation of endothermic with +2. So propagation step already I have explained that this is endothermic reaction. So CH3Cl, देखो, this is also we need to break the Cl-Cl bond so that it is also, so CH formation of, sorry, either endothermic, so the propagation of CH formation of endo, देखो, sorry, this is not, देखो, this is a formation of the molecule, right? This is a formation of the molecule. So anyway, propagation step involving some, this is exothermic reaction होता है. So first step is endothermic reaction, this is the first step, and second step में it is a formation of the molecule form हो गया. So required molecule is formed. So the formation of the bonds generally exothermic reaction. So dissociation of the bonds is endothermic reaction. These statements are very important. Dissociation of the molecule is, so final product इधर free radical इधर form हो गया, but लेकिन it is endothermic process, CH bonding. इधर Cl bond is a weak bond, easily one free radical easily can break the another free radical, so that it is a formation of the final product CH3Cl. So that is a formation of the product is generally it is a either endothermic reaction here. So it is exothermic होता है. So that this is also गलत answer होता है. And the reaction is exothermic with delta H minus. So this is we have to do the problem करना पड़ता है. So let us see here. We have information there. This is the information. What is the bond energies there? So let us take this is the bond energies. So formation of CH4 plus Cl2 will give CH3Cl. Finally, आपको is asking delta H how much. You have to utilize this thermodynamic concept here. देखो already this is endothermic reaction, dissociation of the molecules, sir. This is endothermic, so this is a positive and positive value. But लेकिन, so if you want to get the HCl, CH3 HCl, so these two reactions you have to invert करना पड़ता है, reverse करना. So these two should be reverse. It is reverse करना, reaction should be reverse, these two. So reverse करें तो generally आपको मिलेगा. So then what happened, इसको reverse करना है. So CH3 free radical plus Cl free radical, then आपको CH3Cl. So इधर delta H value become negative होता है. So minus 85 kilocalories होता है. Because reaction reverse रहे तो sign also change होता है. Positive become negative. इधर also आपको HCl आना चाहिए. So HCl राइट साइड होना चाहिए. सो दैट्स इधर लेफ्ट साइड है. सो ये रिएक्शन को रिवर्स करो. सो रिवर्स करें तो H फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, देन यू आर गेटिंग द HCl. देन यू फाइनली दिस रिएक्शंस को ऐड करो. सो ऐड करें तो देन आपको CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, इधर Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल कैंसिल होता है, एज वेल एज H फ्री रेडिकल, इधर H फ्री रेडिकल कैंसिल होता है. सो ऑल Cl फ्री रेडिकल्स जनरली कैंसिल हो गया. सो इफ यू डू दिस, इफ यू डू Cl फ्री रेडिकल एनीवे HCl आता है, CH3Cl. सो पूरा आप ऐड करें तो फाइनली आपको मिलेगा दिस आंसर. सो दिस इज अ minus 25 किलो कैलोरी पर मोल आता है. सो इफ यू ये रिएक्शंस इफ यू कन्वर्ट करें तो, सो इधर CH3 फ्री रेडिकल भी कैंसिल होता है बिकॉज ऑफ मैं रिवर्स किया. देखो H फ्री रेडिकल इधर व्हाट इज रिमाइनिंग हियर, देखो CH3 CH4 रिमाइनिंग प्लस Cl2 राइट साइड क्या मिल गया. सो दिस इज एंड राइट लेफ्ट साइड क्या जनरली
we have already cancel किया CH3Cl and HCl. So इसको भी reverse किया minus minus. So if you add these two 105 plus 105 and 58, so then 13 and 163. So 163 and here minus 85 minus 103. So 103 and 85 should be 8 and 18. So 188. So 188 if you minus 163. So around it is आपको मिलेगा. So 5 and is a 25. So minus 25 final minus आता है. So that इधर answer also इधर statement में the reaction is exothermic with total reaction is exothermic reaction minus 25. This is answer should be D only. It is a single correct answer only. So multi correct answer nahi hai na. So that's why no problem at all. It is a D correct answer. So next question, paragraph question. This is also single correct answer only. So the here given the, if you read this paragraph, so K3FeCl freshly prepared FeCl solution produces a dark blue precipitation called turns blue. The reaction K4, this is the reaction K4 with FeSO4 solution, complete absence of produce white precipitation, which turns blue in air. बोले तो further oxidation रहे तो mix. So this is इतना statement देखेंगे. पहले हम X करना है. So इधर if you K4FeCN taken 6 times is react with absence of air, FeSO4, because it is a cations can be replaced होता है. So absence of air, then you can produce only, so Fe, one of the K2, one of the two cations can be replaced करके FeCN taken 6 times आता है. So should be, this is X, absence of air bola. So this is absence of air. Suppose if you same thing, if you FeSO4, so presence of oxygen, excess of oxygen, so entirely slowly it is completely oxidized and FeCN taken 6 and twice. बोले तो ये आता है. So this is asking absence of air पूछ रहा है. So that this should be X. So answer should be C आना चाहिए. C आना चाहिए. So next question क्या पूछा है? So among the following brown ring due to formation. So brown ring complex, direct question. Brown ring complex is used to identify the nitrate ions. So penta-aqua. Where it is a penta-aqua? This one. So ferrous sulfate, slowly if you add H2SO4 and HNO3, so क्या already इधर hint दिया, so mixing of the NaNO3 followed by slow addition of concentrate, so NaNO3 use करना है, so slowly add करे तो H2SO4 आपको मिलेगा brown ring here. This is used to identification of the nitrate ions in the given salt. Okay, so penta-aqua, nitrocilium, iron oxidation state should be +1 oxidation state. Okay, so next question. This is also we have non-negative integers. So either integer type question is a section 4 last section. So either this is the belongs to oxidation 16th group elements, इधर 17th group elements में दिया था oxide, the average oxidation state पूछ रहा है. So when ozonolysis of Cl2, sir इधर ozonolysis of Cl2 generally on ozone, so इधर ClO3 it is unstable, it is going to be converting into Cl2O6, dimerization होता है. Because of dimerization इसका oxidation state we need to find out करना है. So they are asking average oxidation state. Average oxidation state we need to find out chlorine oxidation state. So 2x plus 6 into minus 2 is equal to 0. So 2x is equal to plus 2 plus 12, x is equal to plus 6. So oxidation state of the chlorine, average oxidation state of the chlorine will be plus 6. So it is an integer type questions beta, integer type question. Okay, so this is about entire paper 1 chemistry. So some questions only, so remaining questions the next teacher will explain you. Hope you all of you understand.
सो दिस इज अ मल्टी कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस ऑल विल बी एनीवे आपको मालूम है. सो एडवांस पेपर मतलब इट शुड बी थोड़ा सभी मिक्स रहता है. सो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल मिक्स क्वेश्चंस रहता है. सो यू हैव सभी फिजिकल में एज वेल एज ऑर्गेनिक में एज वेल एज इनऑर्गेनिक में सभी में नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा डेप्थ होना चाहिए. देन ओनली वी कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व बिकॉज इट इज अ मल्टी कॉन्सेप्ट. सो दैट्स व्हाई इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स नहीं देता है जनरली एडवांस क्वेश्चन पेपर में. बट लेकिन इट्स अ वंडरफुल पेपर एक्चुअली 2021. सो होप यू ऑल ऑफ यू डिड वेल. सो एनीवे this is about today question paper of advance paper 2. Remaining questions we'll discuss another sir. Okay, so this is Vidyaradhana Academy. My name is Pondaganti Santosh Kumar. Thank you. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे. तो हम पेपर 2 का डिस्कशन कर रहे थे. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पीएस के सर ने ले लिया है. अब हम फिजिकल से स्टार्ट करते हैं. फिजिकल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और आप बोल सकते हो पेपर 2 का थर्ड क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं. ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है, बट बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम रेट लॉ की तरफ भागते हैं. तो रेट लॉ से हम ऑर्डर निकालते हैं, और ऑर्डर के बेस पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उनको लगाने की कोशिश करते हैं. अगर आपने भी ऐसा किया तो पक्का आपका क्वेश्चन ये गलत हुआ होगा. इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है. उस ट्विस्ट नहीं, बड़ा छोटा सा ट्विस्ट है, उसने पूरा गेम बदल दिया. क्या ट्विस्ट है? ये जो x के सामने ना 2 लगा दिया. जो आप फर्स्ट ऑर्डर के जितने फॉर्मूले पढ़ते हो ना, उसमें x के सामने कुछ होता नहीं है. तो इसलिए वो फॉर्मूले आप लगा सकते थे अगर x के सामने 2 नहीं होता. ये 2 ने पूरा गेम बदल दिया. तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हमें स्टार्टिंग से इसको समझना पड़ेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं पेपर उठा लेता हूं, वहीं से हम करेंगे. ये अपना इजी नोट है. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 2x + y गिव्स प्रोडक्ट p. ठीक है. हमें रेट लॉ भी दिया हुआ है, dp/dt = k × x. तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, लेकिन फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे हम. तो कैसे करना है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे, एट टाइम t = 0, x की जो मोल है वो हमें दिए हुए हैं. कितने मोल हैं? 2 मोल हैं. y के 1 मोल दिए हुए हैं. ठीक है. और टाइम एट टाइम 50 सेकंड पे हमें बोला गया है कि जो y है वो 0.5 मोल हो गए हैं. कितने हो गए हैं? 0.5 मोल. पहले मैं जो चीजें इस क्वेश्चन में दी हुई हैं उनको पहले लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊं कैसे इस क्वेश्चन को करना है. तो 0.5 मोल दिए हुए हैं y के, तो x के कितने मोल रहेंगे? बता सकते हो. तो सिंपल है. ठीक है. अगर 1 मोल इसका कंज्यूम होगा तो इसके 2 मोल कंज्यूम होंगे. तो 1 में से 0.5 मोल y के कंज्यूम हो चुके हैं. तो इसके कितने कंज्यूम हुए होंगे? 1. तो 1 कंज्यूम होंगे. बचे कितने? हम 50 सेकंड पे ये देख रहे हैं कि कितने बचे हैं. तो बचे हैं 1 मोल. और बने कितने? 0.5 मोल प्रोडक्ट हमारे पास बना होगा. ये सब चीजें हमें दी हुई है. ठीक है. पहला जो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, उसमें हमसे रेट कांस्टेंट पूछा गया है रिएक्शन का. तो आप इस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करोगे, ln A = ln A0 - kT. और क्वेश्चन होगा आपका 100% गलत. ऐसे नहीं करना है. कैसे करना है समझिए. सबसे पहले dx/dt, ये नोट नहीं आएगा यहां पे. डिफरेंशियल रेट लॉ लिख रहा हूं मैं यहां पे. 1/2 = dy/dt माइनस में = dp/dt. ये रेट ऑफ रिएक्शन है. बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं, उसी तरीके से हम जा रहे हैं. और रेट लॉ कितना दिया हुआ? k × x. हमें इस k की वैल्यू निकालनी है. तो क्या करेंगे? इन दोनों को पकड़ेंगे और इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, तभी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो. दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे. ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है. dx/dt और यहां पे 1/2 है, इसको रखेंगे हम k × x. ठीक है. इसको यहां पे लाए हम x और k × dt, और यहां पे चला गया -2 को भी हम उस तरफ ले गए और 2. अब इसको कर देंगे हम इंटीग्रेट 0 से लेके टाइम कुछ भी है. टाइम हम बोल देते हैं 50 सेकंड के लिए हमें
हम देख रहे हैं टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 50 सेकेंड। यहाँ पे टाइम 50 सेकेंड लगा, यहाँ टाइम इज इक्वल टू 0 है, और क्योंकि हमें x की कॉन्सेंट्रेशन पता है 0 पे भी और 50 सेकेंड पे भी, तो हम यहाँ बोल देते हैं x नॉट, और यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं x। पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ln x, ठीक है, x नॉट x इज इक्वल टू -2k इंटू टी, और यहाँ पे लिमिट रखेंगे 0 से लेके 50 सेकेंड। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दोगे, k की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, और कितनी आएगी उसको भी देख लेते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे साइड में जल्दी से कर देता हूँ, ln x माइनस ln x नॉट इज इक्वल टू -2kt, और यहाँ पे हम पुट करेंगे बाद में, यहाँ पे पुट करते हैं। तो x टाइम इज इक्वल टू 50 सेकेंड पे कितना है भाई, देख लो यहाँ पीछे कितना है 50 सेकंड पे, 1 मोल है। 50 सेकंड पे है 1 मोल है, मोलरिटी हमें चाहिए रहती है, कॉन्सेंट्रेशन लिखनी रहती है, लेकिन वॉल्यूम अपनी 1 लीटर है, तो हम 1 मोलर लिख सकते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा, है ना, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ पे x, इसको ऐसे करो, ये x नॉट, और ये कितना है, ये 2 मोल था, तो मोलरिटी 2 मोलर, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम अपनी 1 है, ठीक है भाई। इन वैल्यू को पुट कर देते हैं हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 और ln 2 इज इक्वल टू -2 इंटू k, और टाइम कितना अपना 0 से लेके 50 अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आ जाएगा 50। इतनी बात क्लियर। इसको हम लिख सकते हैं ln 1/2 -2k इंटू 50, और इसको हम लिख सकते हैं ln 2 की वैल्यू हमें दी हुई है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ln 2 की वैल्यू कितनी है 0.693, 2 इंटू 50, ये आएगी अपनी k की वैल्यू, ठीक है। इतनी बात क्लियर, k अपना यहां से आ गया। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उससे मैच नहीं कर रहा है, आप फिर से भी करके देख सकते हो। अगले पार्ट पे चलते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है, तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो तो गलत है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, हाफ लाइफ के बारे में पूछा गया है। किसकी हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ x। तो हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ होती है जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाती है, उस टाइम को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी x की, 2 मोलर थी ना, और कितनी हो गई 1 मोलर हो गई, कब हुई 50 सेकंड पे। तो 50 सेकंड क्या है, हाफ लाइफ है, क्योंकि इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, हाफ हो गई, तो ये 50 सेकंड है हाफ लाइफ किसकी, x की। तो सेकंड पार्ट तो ठीक है। थर्ड पार्ट में, मतलब सी जो ऑप्शन है उसमें हमसे पूछा गया है, यहां देख लो एक बार, सी में हमसे पूछा गया -dx/dt बताओ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x बताना है हमें। तो इसको कैसे करेंगे, तो क्या करना है हमें, -dx/dt हम क्या करेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूं मैं क्या करने वाला हूं अभी आपको। इन दो चीजों को उठाऊंगा यहां से, एक इसको उठाऊंगा, एक इसको उठाऊंगा, इन दोनों को इक्वेट करूंगा। ये अपना रेट लो है और ये डिफरेंस रेट लो है, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। कैसे करूंगा देखना अभी जल्दी से। तो यहां 1/2 है और यहां है kx, ठीक है, 2 को वहां पे ले गया मैं, और ये हो गया 2 इंटू k इंटू x, ठीक है। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, इसकी वैल्यू बतानी है, कब बतानी है, 50 सेकंड पे। कब बतानी है, 50 सेकंड पे। तो यहां तो टाइम है नहीं, तो अब क्या करेंगे, x तो है, x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो हम ये देख लेंगे कि x कितना है 50 सेकंड पे, कितना है भाई, देख लो यार, 50 सेकंड पे 1 हो गया था, मुझे तो याद भी हो गया ये। 50 सेकंड पे कितना हो गया है 1, तो हम लिखेंगे -dx/dt और 2 इंटू k, और ये तो 1 हो गया है, और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू यहां से उठा लेंगे यार, 0.693/100। तो k की वैल्यू उठाई हमने 0.693 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना, सही लिखा ना मैंने, देखो यहाँ 0.693, ये 100 हो जाएगा, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम निकालेंगे, कितना आएगा, निकाल लेते हैं यार, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, और 6 दूनी 12, 13, और कितना आ रहा है 1.386 इंटू 10 की पावर 2, और
आंसर कैसा दिया हुआ है, आंसर देखो एक बार, आंसर दिया 13.86 और हमारा क्या आ रहा है 1 पॉइंट, तो इसको उसमें 13 में कन्वर्ट कर देते हैं, -2 आएगा, तो हम इसको क्या लिखते हैं 13.86 इंटू 10⁻³ इसकी यूनिट आप देख लेना। तो आंसर क्या होना चाहिए, ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तीसरा पार्ट और देख लेते हैं जल्दी से, थर्ड पार्ट भी हमें ऐसे ही करना है। हमें क्या बताना है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ वाई बताना है ना, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ वाई बताना है, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे k इंटू एक्स। बात क्लियर है ना, ये कैसे लिख रहा हूं मैं, देखिए यहां पे देखिए। अब इस बार मैंने क्या किया, इन दोनों को उठा लिया है यहां से, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं और कुछ नहीं है, सॉरी आगे आगे। हाँ, अभी हमें यहां पे क्या करना है, dy/dt है, kx है, तो हम क्या करेंगे, हमें से इसके बारे में पूछा गया है और टाइम कितना बोला गया है हमसे, टाइम बोला गया है 100 सेकेंड। अब क्या करें यार, 100 सेकेंड पे हमें ये पता ही नहीं कितना बनेगा, तो कैसे करें, तो बड़ा सिंपल है यार, या तो इसको डायरेक्ट करो, या तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, या आप फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हो। तो इसमें फॉर्मूले के हिसाब से कैसे करना है वो बताता हूं, फिर डायरेक्ट कैसे करना है वो भी बता देता हूं। तो इसमें आप है ना पहले x की वैल्यू बताओ, क्यों x की वैल्यू बताएं यार, x की वैल्यू हमें बतानी है, ये चाहिए रहेगा हमें, x की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए रहेगी 100 सेकेंड पे। तो x की वैल्यू हमें निकालने के लिए, x की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, इसके बेस पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो उससे डायरेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट तरीका ये है कि हमसे बोला गया है कब 100 सेकेंड पे, कब बोला गया है 100 सेकेंड पे x की वैल्यू हमें बतानी है। तो x के केस में, x के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर है, और आपको ये पता होता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है कॉन्सेंट्रेशन के, ठीक है। कहने का मतलब क्या, कहने का सिंपल ये मतलब है कि आप कोई भी कंसंट्रेशन लो, उसको हाफ होने में उतना ही टाइम लगेगा। तो आपने 2 मोल से स्टार्ट किया था, 1 मोल होने में कितना टाइम लगा, 50 सेकंड, अगले 50 सेकंड में कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। तो एट 100 सेकंड, 100 सेकंड ये नेक्स्ट हाफ लाइफ है, समझ रहे हो ना, 50 सेकंड इसकी हाफ लाइफ है, तो अगले 50 सेकंड में कितना हो जाएगा, उससे हाफ हो जाएगा अगली हाफ लाइफ में, तो 0.5 मोल बचेंगे, ठीक है। बात आ रही समझ में, 0.5 मोल कंज्यूम हो गया। अगर इसके 0.5 मोल कंज्यूम हो, इसके कितने होंगे, इसके होंगे 0.25, इसके बचेंगे कितने, 0.25 मोल बचे, और ये कितना हो जाए 0.75 मोल। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है, अब क्वेश्चन हो गया, अब तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे। हाँ, तो हमने ये लिखा dy/dt और k की वैल्यू कितनी थी 0.693 अपॉन 100, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कब 100 सेकंड पे बताना है हमें, x की वैल्यू कितनी है 0.5 मतलब 10, 5/10। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है एक बार उसको भी देख लेते हैं। 0.5 15 और 9 पंजे 45 46, 4 6 पंजे 30 68 34 इंटू 10⁻³ ये आंसर दिया हुआ है, यही आंसर है, ठीक है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है अपना, इसमें कौन कौन से आंसर करेक्ट हैं अपने, इसमें अपना ये तो गलत है, ऐसा नहीं था अपना, रेट लो मतलब रेट कांस्टेंट ये तो नहीं आया था, ये ठीक है, ये ठीक है, BCD इसका आंसर होना चाहिए था, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, इतना मुश्किल नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन है इस सेकंड पेपर में, तो ये वाला इजी है, अगले वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां चलते हैं अपने इजी नोट पे, यहां मैं आपको समझाता हूं क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि यार अपने पास है ना एक 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर x+2 आयन है, ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन है उसके अंदर y+2 आयन है, और हमने क्या कर दिया है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड डाल दी है, और इलेक्ट्रोड किसकी, ये x की है और ये y की, इतनी बात क्लियर है, और इसको कनेक्ट कर दिया है एक कंडक्टिंग वायर से। तो कहने का सिंपल मतलब है हम गैल्वेनिक सेल बना रहे हैं, ठीक है, गैल्वेनिक सेल बन गई। कॉन्सेंट्रेशन भी दे दी इन्होंने, इसकी y की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई, यहाँ पे y+2 आयन की है 0.1 मोलर, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर, इतनी बात क्लियर।
ये सारी चीजें हमें दी हुई है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इस क्वेश्चन में दी हुई है, वहीं से पूरा क्वेश्चन होने वाला है। वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इससे क्या हुआ, एक्स का डिसोल्यूशन हुआ। एक्स का डिसोल्यूशन हुआ मतलब एक्स की ये जो रोड है ना, ये पानी में डिजोल्व होने लगा। कैसे होगा? अगर एक्स आयन में टूटेगा तभी तो डिजोल्व होगा ना। तो ये सॉलिड था और आयन में टूटा, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे। मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन, ये बताना चाहता है और कुछ नहीं। इतना समझ गए तो क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, तो इसका क्या होना है? ऑक्सीडेशन। दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन होगा। Y+2 है, एक्वस इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनाएगा Y सॉलिड। यहां से हमें क्या करना है? ओवरऑल रिएक्शन लिखने, तभी हम गैल्वेनिक सेल के क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी? हमें ऐड करना है और कुछ नहीं करना। X सॉलिड है प्लस Y+2 एक्वस, और हमें क्या मिल रहा है यार? मिल रहा है ये X+2 एक्वस। इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएंगे, Y सॉलिड। ओवरऑल रिएक्शन आ गई अपनी। अब यहां से गेम स्टार्ट होता है। हमें है ना कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, कौन से ऑप्शन मतलब काम करेंगे। मतलब X ये हो सकता है, Y ये हो सकता है। तो किस केस में ऐसा होगा? मतलब ऐसा होगा क्या? मतलब डिसोल्यूशन होगा, मतलब ये रिएक्शन अपने आप होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस कब होती है? जब जो ई सेल है वो क्या हो? पॉजिटिव हो। क्यों? डेल्टा जी इजकल टू माइनस NFE नोट, है ना। तो उससे क्या होगा? NFE बोल सकते हो आप। डेल्टा जी इजकल टू माइनस NFE। तो E अगर पॉजिटिव हो तो डेल्टा जी नेगेटिव, और नेगेटिव हुआ तो अपनी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो हमें यही देखना है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किस केस में हो गए। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है CD एंड निकल, और क्या दिया हुआ है? CD एंड Fe, और निकल एंड PB, और क्या हुआ है? निकल एंड Fe। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि कौन से में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो हमें क्या देखना है? ई नोट सेल नहीं देखना है। ई नोट सेल नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है ई नोट सेल? हमें ई सेल देखना है। क्यों यार? ये देखो पीछे, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं है, 0.1 मोलर है इसकी 0.01 मोलर। तो हमें नर्स्ट इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा यार। नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है? साइड में लिखता हूं छोटा सा। नर्स्ट इक्वेशन बोलती है ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n ln q। समझ में आई बात आ रही है समझ में? ln नहीं आएगा यहाँ पे, log आएगा। 0.059 यूज किया है ना, तो इसलिए log आएगा। तो ई नोट सेल, इनकी वैल्यू पुट करते हैं 0.059, और n कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे? 2। तो n की वैल्यू 2 है। ठीक है, ln q में क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो X+2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Y+2 की कॉन्सेंट्रेशन, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, लॉग में क्या लिखना है? X+2 की कॉन्सेंट्रेशन और नीचे Y+2 की कॉन्सेंट्रेशन, और वो कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई है। ई नोट सेल हमें नहीं पता यार कितना है, और 0.0591 अपॉन 2, और लॉग ऑफ X+2 आयन कितना दिया हुआ है यार? X+2 आयन कितना था? 10⁻³ ये दिया हुआ है, log 10⁻³ और ये कितना दिया हुआ है? 0.1 मतलब 10⁻⁻1। इसको कैंसिल कर दो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा अभी। यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये 10⁻² होगा ना यार, उसको हम आगे लेके आएंगे तो 2, तो ये प्लस हो जाए 0.0591 और डिवाइडेड बाय 2। इतनी बात क्लियर है? ये अपना ई सेल है। अब यहाँ से समझने क्या, इसमें आगे कोई कैलकुलेशन नहीं है, इतनी सी कैलकुलेशन थी बस। हमें क्या करना है? ई सेल को पॉजिटिव बनाना है। ई सेल को पॉजिटिव क्यों बनाना है? तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ई सेल को पॉजिटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? ई नोट सेल को देखना पड़ेगा। ई नोट सेल या तो पॉजिटिव में आए, किस में आए? या तो पॉजिटिव में आए, नेगेटिव में भी आ सकता है, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए। तो हम यहां लिखें ई सेल है वो ई नोट सेल प्लस 0.0591 है, ये आ रहा है। ठीक है,
तो हमें क्या चाहिए कि ई नोट सेल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू दी है, तो ई नोट सेल निकाल लेंगे और हम देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या तो तभी पूरी चीज पॉजिटिव होगी, या नेगेटिव भी है तो इससे छोटा है। समझ में आई बात? तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो सी अपना क्या है, CD और निकल दिया, तो CD अपना CD का ऑक्सीडेशन और निकल का रिडक्शन, ये इसी ऑर्डर में दिए हुए हैं। ये X है, ये Y है, ये X है, ये Y है, ये X है, ये Y है। तो इसका ऑक्सीडेशन होना है, तो इसका ऑक्सीडेशन होना है तो हम क्या निकालेंगे, ई नोट सेल। ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। आप बोलोगे ये कौन सा फॉर्मूला लिख दिया यार, मैं ऑक्सीडेशन में लिख रहा हूं, इसलिए जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो माइनस वाला वो रिडक्शन वहां यूज करते हैं, मैं ऑक्सीडेशन यूज कर रहा हूं, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, CD का। सिंपल, CD का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैं क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये कितना होगा CD का, CD का दिया हुआ है -0.4 वोल्ट, तो हमें क्या चाहिए ऑक्सीडेशन, वो रिडक्शन दिया हुआ तो हम पॉजिटिव कर देंगे 0.44। ठीक है, रिडक्शन कितना दिया हुआ है किसका, निकल का, निकल का दिया हुआ है -0.24। ठीक है, प्लस ही था ये माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव थी। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आगे नहीं करूंगा मैं, पॉजिटिव आएगा तो ये सेल हमारी काम करेगी। CD और FB, CD का कितना है, CD का इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन। तो CD का हमने अभी देखा था ऑक्सीडेशन कितना है 0.44, तो हम ई नोट सेल निकाल रहे हैं, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन, तो ई नोट ऑक्सीडेशन CD का कितना है, CD का है 0.4 वोल्ट, और FV का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है -0.44 वोल्ट। ठीक है, तो माइनस में आ रहा है तो इसको लिख लेते हैं, कितना है 0.004 वोल्ट माइनस में, ये ई नोट सेल माइनस में आया। ठीक है, एक माइनस में आया अभी तक, इसका देखेंगे अभी क्या है। निकल का और PB का देखते हैं, निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ई नोट सेल लिखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है -0.24, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन चाहिए 0.24 लेंगे। ठीक है, PB का क्या दिया हुआ है, PB का रिडक्शन पोटेंशियल हमें चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.13 वोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये भी काम करेगी अपनी सेल। थर्ड पे चलते हैं, निकल का क्या दिया हुआ है, निकल ऑक्सीडेशन होगा इसका, इसका रिडक्शन। ठीक है, ई नोट सेल निकालने की कोशिश करेंगे। ई नोट सेल क्या होगा, ऑक्सीडेशन निकल का हो रहा है, निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, -0.24 होता है, प्लस लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं आपको। ठीक है, और FV का क्या है, FV का रिडक्शन हो तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे -0.44 वोल्ट। कितना आ रहा है देख लीजिए, माइनस में आ रहा है, इसमें आएगा -20 वोल्ट। बात क्लियर है, -0.2 वोल्ट। दो पॉजिटिव है, वो तो अपने गेम के अंदर है, मतलब ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। माइनस वाले को देखना है, तो माइनस में मैंने क्या बोला था कि पूरा पॉजिटिव होना चाहिए। पूरा पॉजिटिव कैसे होगा, अगर ई नोट सेल इससे छोटा हो, इससे छोटा हो, 0.059 से छोटा होना चाहिए, 0.59 से छोटा है, ये करेक्ट है, 0.059 से बड़ा है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ABC होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इसका होगा ABC। बात क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2 पे, सेक्शन 1 में इतने ही क्वेश्चन थे, सेक्शन 2 पे चलते हैं अभी। सेक्शन 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फिर से क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है जो सिंपल सा है, लेकिन बड़ी क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए इसके लिए। इसमें आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है इस क्वेश्चन में, कैसे आंसर तक पहुंचे। ठीक है, आपको यह भी पता रहेगा कि मेरा आंसर गलत है या नहीं है, मतलब अगर आप सही चीज को पकड़ गए ना तो आंसर आना ही आना है, अगर नहीं पकड़ पाए तो पूरा टाइम लगे रहना, आंसर नहीं आएगा। तो क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं अभी। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, एक अपनी गैल्वेनिक सेल होती है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, एक कंडक्टेंस होता है। कंडक्टेंस से पूछा गया है क्वेश्चन, तो कैसे करना है एक बार चलते हैं अपने इजी नोट पे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या है यार, सेक्शन 2 का क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कितनी दी हुई है, 4 × 10⁻²। यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूं, वैसे फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट से गेम खेला जाता है, और स्पेशल इस वाले क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में, लेकिन यहाँ पे यूनिट का कोई
रोल नहीं है, मैं करके देख चुका हूं, तो आप घबराओ मत, तो इसलिए मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, यूनिट का ज्यादा काम नहीं पड़ेगा यहाँ पे। और हमें बोला गया है एक मोनोबेसिक एसिड है, मतलब एक H+ दे रहा है तो H हमने मान लिया, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और किसी C1 कॉन्सेंट्रेशन पे, किसी कॉन्सेंट्रेशन पे हमें बोला नहीं गया है कि कॉन्सेंट्रेशन है कुछ, हम मानते हैं कि किसी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये क्या दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ, मतलब अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये दोनों चीज है ना, इस पे डिपेंड करती है, दिया नहीं हुआ लेकिन हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन C1 है, स्टार्टिंग में C1 कॉन्सेंट्रेशन पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो अल्फा है, और लैम्डा m की वैल्यू दे रखी है इन्होंने y × 10⁻², y × 10⁻² यूनिट है इसकी। अब ये क्या करता है, ये जो मोनोबेसिक एसिड है पहले उसकी इतनी कंसंट्रेशन थी तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इतनी थी, अब उसने उसके अंदर पानी डाल दिया, कितना डाल दिया, 20 गुना, डाइल्यूशन कर दिया 20 टाइम्स। अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी चेंज होगी, है ना, क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, तो मोलर कंडक्टिविटी चेंज हो गई, और कितनी हो गई, 3y × 10⁻²। इतनी बात क्लियर है। अल्फा भी चेंज होगा, है ना, ये नहीं बताया कितना चेंज हुआ, तो हम लिख लेते हैं अल्फा डैश, कुछ अल्फा डैश हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होनी है, डाइल्यूशन करें C2। अभी कैसे करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, हमें अल्फा निकालना है यहाँ पे, और हमें y निकालना है, बस इतना क्वेश्चन है, करना कैसे है, तो हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है इन तीनों में एक रिलेशन है, पता है रिलेशन, उस रिलेशन को यूज करेंगे, तो हमें पता है कि क्या, लैम्डा m = लैम्डा अल्फा × लैम्डा नॉट m, मोलर कंडक्टिविटी = अल्फा × लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको यहां पुट कर दो, वही फॉर्मूला लिखा है मैंने, घबराओ मत, ठीक है। और इसके लिए मैंने अप्लाई किया, और ऐसे ही मैं नीचे वाले के लिए भी अप्लाई कर देता हूं, अल्फा डैश, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चेंज नहीं होती है, आप क्योंकि वो होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब मैक्सिमम जा चुका है, इससे मैक्सिमम नहीं पहुंचा सकते, तो ये फिक्स रहता है। इस वाले सॉल्यूशन, इस वाले केस में वो अलग नहीं होगा, वो सेम है, वो फिक्स वैल्यू होती है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें इसकी वैल्यू दी हुई है ना, ये कितना दिया, y × 10⁻², और ये कितना दिया हुआ, इनको डिवाइड कर रहे हैं हम, 3y × 10⁻², y से y कैंसिल, ये सारा कटा, और यहां से ये कट गया, तो अल्फा डैश कितना आ गया, अल्फा डैश आ गया 3 अल्फा। इतनी बात क्लियर। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूशन कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन करते हैं तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और अल्फा भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जो वीक एसिड होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो ज्यादा डिसोसिएट होंगे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपने आप बढ़ना है, तो दिस मच इज करेक्ट। ये प्रूव करता है कि हम ठीक जा रहे हैं अभी तक, ठीक है। अभी क्या करें यार, हमें तो अल्फा चाहिए और वाई भी चाहिए, कैसे करें, आगे कुछ है तरीका, क्या करोगे, यहां अधिकतर बच्चे फंसे होंगे, आगे क्या करना है। अभी हमें क्या करना है ना, हमें बहुत सारी चीजें अननोन है, ना इसका पता है, ना इसका पता है, ना इसका पता है, ना इसका पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले रिलेशन निकालेंगे, इनका भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन करें तो डाइल्यूशन फॉर्मूला लगा के इन दोनों का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे m1v1 = m2v2, डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाया, C1 ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम मान लेते V, और C2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और V2 कितनी होगी, 20 टाइम्स किया ना, 2V, ठीक है। कट कर देते हैं जो कट रहा है, तो C1 = C2 × 20, ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात क्लियर है ना। कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो C2 कम हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, C1 का 20 डिवाइड में जाएगा, बात आ रही है समझ में, क्योंकि डाइल्यूशन करें तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। अब आगे भी कुछ नहीं कर सकते, तो यहां पे एक छोटी सी ट्रिक है, हमें यहां पे क्या करना है, हमें दो वेरिएबल हैं, उनको किसी ऐसी इक्वेशन में रखना है जहां पे इस वाले में भी वो सेम रहे, इस वाले में भी सेम रहे। कहने का मतलब समझ रहे हो, यहां पे दो वेरिएबल है, दोनों का हमें नहीं पता, तो कोई ऐसा फॉर्मूला हमें ढूंढना है कि जिसमें
जो इस वाली कंडीशन के लिए भी सेम रहे, इस वाली कंडीशन के लिए भी सेम रहे। ऐसा कोई फॉर्मूला है। वीक एसिड है, वीक एसिड का KAA ये कभी चेंज नहीं होता है। कॉन्सेंट्रेशन आप कुछ भी करते रहो, इधर उधर करते रहो, कुछ चेंज नहीं होगा इसका, दोनों के लिए सेम रहेगा। हमें क्या करना है, के का फॉर्मूला पुट करना है और सारी वैल्यू को पुट करना है, आंसर आ जाएगा। कैसे? KA स्टार्टिंग वाले केस में लगा रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले केस में स्टार्टिंग में C1 कॉन्सेंट्रेशन थी, C1 अल्फा 1 स्क्वायर, या अल्फा था, सिर्फ अल्फा 1 नहीं था, अल्फा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 लिख रहा हूं मैं, सिर्फ अल्फा है, सॉरी, ठीक है। और ऐसे ही इसी इक्वेशन को, मतलब K की वैल्यू को हम सेकंड वाले पार्ट के लिए निकालेंगे और दोनों इक्वल होंगी, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, C2 और अल्फा डैश का स्क्वायर, अल्फा डैश है वहां पे, और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा डैश। अब हमें क्या पता है, C1 और C2 में रिलेशन पता है, अल्फा 1 और अल्फा 2 में रिलेशन पता है, तो हम क्या करेंगे, इन सारों को चेंज करके C और अल्फा में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो पीछे चलते हैं। C1 इक्वल टू C2 इंटू 20, तो C2 क्या हो जाएगा, C1 अपॉन 20। तो सबसे पहले इस C2 को ही भगाते हैं यहां से, तो हम क्या लिखेंगे, C1 अपॉन 20। बात ठीक है। अल्फा 1, अल्फा और अल्फा डैश में बार बार अल्फा 1 बोल रहा हूं मैं, इसमें क्या रिलेशन, अल्फा डैश इज इक्वल टू 3 अल्फा। ठीक है भाई, इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको हम 3 अल्फा लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाए, 1 माइनस 3 अल्फा। क्लियर? तो हम लिखेंगे C1 9 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 माइनस 1 माइनस 3 अल्फा, और यहाँ पे क्या है, C1 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। कटा कटा कटा, बस अब क्या बचा, अब तो मैथ बचा, अब तो वो तो आप कर सकते हो, 3 माइनस 60 अल्फा, और ये 9 माइनस 9 अल्फा। ठीक है, ये 20 माइनस 9 और 60 अल्फा माइनस 9 है अल्फा। ये कितना बचा है, ये 11 बाय 51 बचा ना, इसका अल्फा आ गया। अल्फा आ गया, अब हमें लैम्डा एम चाहिए। लैम्डा एम कैसे निकलेगा, आप तो निकाल ही सकते हो यार, लैम्डा एम चाहिए हमें। अल्फा है, इसकी वैल्यू दी हुई है, मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा एम निकालना है। लैम्डा एम कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 11 बाई 51 आई। ठीक है, लैम्डा नॉट की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 4 इंटू 10 की पावर 2, और जो भी आंसर आएगा पुट कर देना, बस इतना ही था क्वेश्चन। बस इसमें छोटी सी ये ट्रिक थी कि KA दोनों के लिए सेम था, जिसने ये पकड़ लिया बस क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 7th और 8th हो गए अपने। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है इन्होंने, बड़ा सही काम किया इन्होंने ऑर्गेनिक और फिजिकल को मिक्स कर दिया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था, जब मैं आईसीआर का इंटरव्यू दे रहा था उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, उसका रिडक्शन करा रहे हैं। रिडक्शन के लिए मुझसे पूछा था, रिडक्शन के लिए क्या यूज करोगे, तो सभी को पता है SnHCl। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। ऑर्गेनिक का नहीं है क्वेश्चन, ऑर्गेनिक और फिजिकल को मिक्स कर दिया है, तो ऑर्गेनिक में जितना पार्ट होता है वो तो आपको बता ही दिया है। तो अपने पास नाइट्रोबेंजीन है, इसका रिडक्शन कराना है हमें। रिडक्शन कराते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, SnCl। इतना ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि इसका रिडक्शन हम कैसे कराएंगे, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा NH3 प्लस Cl नेगेटिव, और बाद में इसका एसिडिक वर्कअप करा के हम अमीन बना सकते हैं। हमारा लेना देना यहीं तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है अगर आप समझ गए तो, इसमें कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप घबरा गए कि ऑर्गेनिक और फिजिकल मिक्स कर दिया है तो परेशानी हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। हमें क्या बोला गया है कि ये रिएक्शन है यार, और यहाँ पे इसका अमाउंट दिया हुआ है। इसका अमाउंट कितना दे दिया इन्होंने, इसका अमाउंट दे दिया है 1.29 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे SN यूज हो रहा है, इसका अमाउंट दिया इन्होंने X ग्राम और इसका Y ग्राम। तो X और Y पूछे हैं यार, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ होता क्या है। तो SN और HCl आपस में रिएक्ट करके हमें SnCl2 देंगे। ये क्वेश्चन में बोला भी गया है कि एक सॉल्ट बन रहा है, इतनी बात है इसमें। ये सॉल्ट SnCl2 यहाँ पे काम आएगा और ये SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा इस रिएक्शन के दौरान। ठीक है, हमें अमाउंट बताना कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है रिडॉक्स का, मेन क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का दिख रहा है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है रिडॉक्स चैप्टर से। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, कैसे,
यहां पे हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन। ये SN+2 में है, +2 से +4 में जाएगा, तो इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, यहां पे रिडक्शन होगा। बात क्लियर है? तो यहां पे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहो, यहां +3 है और यहां पे -3 है, रिडक्शन हुआ है, आपको पता है। इसका SnCl2 है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, कैसे होगा वो हम देखेंगे अभी। तो हमें क्या चाहिए, Y चाहिए। Y निकालना बड़ा सिंपल है यार, क्या करना है, इसका वेट दे रखा है, इसके मोल निकालेंगे और जितने इसके मोल है उतने इसके मोल होने वाले हैं, है ना, ये दिख रहा है, सिंपल है। जितने इसके मोल बनेंगे उतने इसके मोल बनेंगे ना। 1 मोल ऑफ दिस नाइट्रोबेंजीन विल गिव्स 1 मोल ऑफ दिस सॉल्ट, ठीक है। तो इसके मोल कैसे निकाले, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आ जाएंगे मोल। तो गिवन मास कितना है 129 और इसका मोलर मास कितना है, मैं पहले ही निकाल चुका हूं, इसका 129 है। तो 0.1 मोल आए, कितने आए 0.1 मोल। इसके 0.1 मोल है तो इसके कितने बनेंगे, मतलब इसके कितने चाहिए रहेंगे, इसके भी 0.1 मोल ही चाहिए रहेंगे। 0. सही लिख रहा हूं क्या मैं, नहीं गलत लिख रहा हूं। इसको रखेंगे तो यहां कितना आएगा 100 आएगा ना यार, ठीक है। 0.01 मोल, तो 0.01 मोल हमें इसके चाहिए रहेंगे। और 0.01 मोल हमें Y ग्राम पूछा है, वेट कितना लगेगा। तो आपको पता है मोल को वेट में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। तो ये मोल है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास से। अरे इसको यहां मल्टीप्लाई करना और क्या करना है। इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास देख लीजिए, इसका मोलर मास कितना आएगा, यह है C6H5NO2। तो 12 6 72 और 5 नाइट्रोजन का 14, ये 32, ये हो गया 4 2 8 5 13, 4 2 8 5 13 और 2 15, सही 7 8 8 और 1 9 और 3 12। ये तो कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे। C6H5NO2, ठीक है ना। 12 6 72, 5 नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 32, 4 2 6, 6 और 5 11 और 2 13, यही ना 123, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं इसलिए मुझे गलती पकड़ में आ गया, आप ऐसी गलती मत करना। तो ये कितना है 1.23 ग्राम, इसका Y आ गया अपना, खत्म। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है। अब X निकालना है, वो ही मेन है। तो कभी भी जब हम ये निकाल रहे हैं ना 1 मोल इजिकल टू ये इसके जितने मोल होंगे इसके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन बैलेंस, मतलब रिएक्शन बैलेंस करके हम बता सकते हैं। तो इस वाले केस में यहां से यहां देखने में ज्यादा कुछ है नहीं, हमें पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ होगा तो इसके 1 मोल से इसके 1 मोल बनेगा। लेकिन ये कितना यूज हुआ होगा, तो उसके लिए हमें पूरी रिएक्शन चाहिए, वो तो बड़ी डिफिकल्ट है ना, पूरी रिएक्शन लिखना। तो उसकी जगह हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे, ना ही रिएक्शन यूज करेंगे, हम सिंपल एक फंडा यूज करेंगे। हम देखें कि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं दोनों चीज जो रिएक्ट कर रही है, तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वेट कर देंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके, जिसकी रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन किसकी हो रही है, नाइट्रोबेंजीन की और SnCl2 की। SnHCl लिया है हमने, लेकिन रिएक्टेंट वो है, वो बनेगा, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा फिर, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके, नाइट्रोबेंजीन के, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं नाइट्रोबेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके, SnCl2। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालें, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं नंबर ऑफ मोल किसके, नाइट्रोबेंजीन, इनटू n फैक्टर किसका, इसका। तो n फैक्टर 1 बोल देते हैं, डैश बोल देते हैं इसको, ठीक है। और यहां पे नंबर ऑफ मोल किसके, SnCl2 के, मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर किसका, इस दूसरे वाले का, SnCl2 का। तो n फैक्टर निकालना है हमें। n फैक्टर कैसे निकलता है रिडॉक्स रिएक्शन का, n फैक्टर देखो ऑक्सीडेशन में कितना चेंज आया, ये +3 से -3 में गया है, कितने का चेंज है, +6 का चेंज है, कितने का चेंज है, +6 का चेंज है। तो इसका n फैक्टर तो हमें मिल गया, इसका n फैक्टर हमने लिख दिया, पहले n फैक्टर लिखा है, कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ मोल किसके, नाइट्रोबेंजीन के, कितने हैं, नाइट्रोबेंजीन के कितने मोल हैं, ये वेट है यार, मोल ये है मोल 0.01, 0.01, ठीक है। इसके मोल निकल के आ जाएंगे SnHCl2। और n फैक्टर कितना चाहिए रहेगा, n फैक्टर कितना होगा बोलो यार, SnCl2 है, ये SnCl4 में कन्वर्ट होगा, यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, ठीक है। कितने का चेंज है, 2 का चेंज है, n फैक्टर 2 हो गया, सिंपल मोल आ जाएंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
3। ये मोल आ गए किसके? SnCl2 के। इसके बारे में कुछ नहीं पूछा गया है, हमसे Sn के बारे में पूछा गया है। इसका कुछ रोल नहीं है, हमें Sn के बारे में पूछा गया है। अच्छा, Sn का वेट पूछा गया है, ऐसा है ना? तो कैसे करेंगे? तो मोल पता लग गए, और जितने इसके मोल हैं उतने Sn के मोल होंगे, क्योंकि SnCl2 किससे बना है यार? Sn से बना है। Cl2, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं भी, HCl इक्वल टू SnCl2। तो जितने इसके मोल हैं उतने इसके मोल बनेंगे। तो इसके 0.03 मोल हैं तो इसके भी 0, तो मोल ऑफ Sn इक्वल टू 0.03 मोल। ये मोल आ गए। वेट चाहिए हमें, वेट कैसे निकलेगा? वेट ऑफ Sn मोल को किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके मोलर मास से। मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है इसका मोलर मास? इसका मोलर मास है 119। आंसर आ जाएगा अपना। क्लियर है ये? चलो बहुत बढ़िया, 9/10 हो गया अपना क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको पहले। फिर से रिडॉक्स का क्वेश्चन। वाह, 2 क्वेश्चन पूछ लिए रिडॉक्स के। ठीक है, रिडॉक्स से वैसे बच्चे भागते हैं, और यहाँ रिडॉक्स के ही 2 क्वेश्चन पूछे। जो मोल कॉन्सेप्ट है ना, अगर वहां से क्वेश्चन आता है तो सेकंड पार्ट से ही आता है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट 2, मतलब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन मतलब अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करना है तो कैसे करेंगे? क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं। चलो इजी नोट पे चलते हैं हम फिर से। तो हमें क्या बोला गया है ना, अपने पास एक सैंपल है, इस पूरे का वेट ऑफ 5.6 ग्राम दे रखा है। ऐसे ही है ना यार? हाँ, 5.6 ग्राम इस पूरे सैंपल का वेट दिया हुआ है। इसके अंदर आयरन है, और इसके अंदर क्या है? आयरन है। अच्छा, आयरन है, लेकिन आयरन का वेट 5.6 ग्राम नहीं है, इस पूरे का वेट 5.6 ग्राम है। और हमसे पूछा गया इसके अंदर कितने आयरन है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये यहाँ का, अगर आपको रिडॉक्स से डर नहीं लगता तब। तो इसको हम क्या करेंगे? हमने क्वेश्चन में बोला गया कि इसको HCl में डालना है, HCl में डाल के इसको डिसोल्व करना है। तो HCl में जब जाएगा ये FeCl2 बनाएगा, तो मतलब Fe+2 आयन बनाएगा। ठीक है, और कितने HCl में डाल के कितना सोल्यूशन बनाया है? 250 ml सोल्यूशन बनाया गया है। कितना बनाया गया है? 250 ml सोल्यूशन। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर कितने Fe+2 आयन है पहले तो ये बताना है। दूसरा काम हमें क्या करना है? इसके अंदर कितना % आयरन है वो भी बताना है। ठीक है, एक बार हमें ये पता लग गया कितने Fe+2 आयन, और हमें पता है Fe+2 आयन कहां से हैं, तो ये भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमें निकालना है Fe+2 आयन कितने हैं। तो उसके लिए हम रिडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे हैं। टाइट्रेशन में हमने क्या किया है? इसमें से 25 ml यहां से निकाला है। कितना निकाला है भाई? 25 ml। 25 ml निकाल के हम इसको KMnO4 से टाइट्रेट कराएंगे। KMnO4 लिया हमने कितना? KMnO4 है कितना लिया है यार? KMnO4 लिया है हमने 12.5 ml। 12.5 ml, और इसकी मोलरिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है मोलरिटी? मोलरिटी देखो यार, 0.03 मोलर दे रखा है। ठीक है, मोलरिटी भी दे दी। क्वेश्चन आसान है यार। रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या करना है होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वल करना होता है, और कुछ नहीं है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को इक्वेट कर दो, जब टाइट्रेशन हो गया एंड पॉइंट आएगा तो वहां क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल होंगे, तो कर दो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके? KMnO4 के इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके? Fe+2 आयन के। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे? एन फैक्टर किसका? KMnO4 का। ठीक है, इनटू नंबर ऑफ मोल किसके? KMnO4 के। तो इसको मैं NF लिख देता हूं, इसके लिए एन फैक्टर डैश लिख देता हूं, और इसके नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe+2। यहाँ से Fe+2 आ जाएंगे, क्योंकि इसका एन फैक्टर हमें पता होगा, इसका एन फैक्टर पता होगा, और मोल तो हम निकाल ही लेंगे। क्वेश्चन आसान था, ये मुश्किल नहीं था। कैसे करें फिर? एन फैक्टर निकालना है तो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमें पता है MnO4 नेगेटिव है, एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे कितना है? +5 है। +5 है, गलत लिख रहा हूं मैं, +7 है यार। ठीक है, निकाल के देखना है, +7 है। तो +7 से +2 में जा रहा है, मतलब 5 का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज है? 5 का। Fe+2 है, इसका क्या हुआ यहाँ पे? रिडक्शन हुआ, तो Fe+2 का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, ये Fe+3 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे कितने का चेंज है? 1। तो KMnO4 के लिए एन फैक्टर कितना हुआ? 5। कितना हुआ? 5। एन फैक्टर हो गया 5। नंबर ऑफ मोल KMnO4 के हमें चाहिए रहेंगे, तो कहां से निकाले? मोलरिटी दे रखी, वॉल्यूम दे रखी, निकल जाएगा मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, बात क्लियर? रख भी देते हैं यार, क्या जा रहा है अपना। मोलरिटी कितनी है? 0.03, और वॉल्यूम कितनी है? 12.5 ml। मैं इसको ml में लिख रहा हूं, परेशान मत होना, क्योंकि वहां भी मैं ml यूज करने वाला हूं। इसका एन फैक्टर कितना है?
स्कैन फैक्टर है 1, ठीक है। मोल 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 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है इसकी 25 ml है। अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, हम डायरेक्ट मोल भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मोल डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोल आपके इसमें निकलेंगे, इसके अंदर निकालना पड़ेगा। फिर हमसे जो मोल पूछे गए वो 250 ml के लिए पूछे गए, तो हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा एक स्टेप थोड़ा कम हो जाए उसके लिए मैंने किया है। तो मोलरिटी हम निकाल लेंगे यहाँ से, कितनी आएगी, 5 से 5 गया, इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5 दूनी 10 बचे 25, तो कितना है मोलरिटी आ गई अपनी, ये 3/100 और 25/10, मोलरिटी आ गई अपनी 75 × 10⁻³ आई होप कोई गलती ना हो। मोलरिटी आ गई किसकी, किसकी, Fe+2 की। यहाँ पे मोलरिटी और यहाँ पे मोलरिटी, सॉरी यहाँ पे मोलरिटी और यहाँ पे मोलरिटी, हमने यहाँ की मोलरिटी निकाल ली है। क्या ये मोलरिटी और ये मोलरिटी सेम रहेंगी? कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रहती है ना यार, वॉल्यूम कम ले लो ज़्यादा ले लो, कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रहेगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसकी जो मोलरिटी वो यहाँ मोलरिटी रहने वाली है। तो यहाँ की मतलब यहाँ की मोलरिटी निकाली तो ये भी मोलरिटी आ गई, और यहाँ हमने मोलरिटी नहीं पूछी, हमसे पूछा गया इसके कितने मोल है, कैसे निकालेंगे? मोलरिटी देख लो कितना है, 75 × 10⁻³ तो मोलरिटी हमें पता है 75 × 10⁻³ किसके बारे में बात कर रहे हैं, 250 ml वाले सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर Fe+2 आयन कितने हैं निकाल सकते हैं यार, कैसे निकलेंगे? मोलरिटी मोल निकाल लेना, तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी कितनी है 75 × 10⁻³ और वॉल्यूम कितनी है 250/1000 लीटर में लेना है, 1/4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1/4 आएगा, 75/4 × 10⁻³ कितना हो गया ये, 4 एकम 4, ये 4 एकम 4 है ना, 3, ये बचा कितना 35, 4 8 32, 3 4 7 28, 4 5 20, ये कुछ आया, ये तो कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया है, x की वैल्यू पूछी गई है, तो x की वैल्यू हमें ऐसे दी गई है, x × 10⁻² है ना, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, कितना आएगा, कर लोगे यार या नहीं होगा, ये हो जाए 1.875 × 10⁻², ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। अगला पार्ट देखो, अगले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि Fe की जो अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट है वो बताना है हमें, तो मोल हमें पता लग गया ना यार, कितने हैं, यहीं से करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, अगले पे जाने की जरूरत नहीं है। तो मोल हमें पता लग गया Fe+2 के कितने हैं, 1.875 × 10⁻², ठीक है। यहाँ से वेट निकल जाएगा, वेट कितना होगा, फॉर्मूला लगाओ, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, 1.875 × 10⁻² और मोलर मास है 56 आयरन का, ठीक है, वेट आ गया आयरन का। हमसे प्योरिटी पूछी गई, तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज आई है 56, इसको डिवाइड करेंगे टोटल वेट से, टोटल वेट कितना है 5.6 ग्राम, इसलिए मैं काट नहीं रहा हूं, और मल्टीप्लाई बाय 100, काटो इसको, ठीक है, ये ऊपर गया 10, ये आया 18.75%, क्लियर। ये क्वेश्चन भी हो गया, थोड़ा जल्दी करा रहा हूं, माफ करना मुझे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 3 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन 4 पे चलते हैं। सेक्शन 4 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखने में बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जो बंदा इसको देखेगा ना घबरा जाएगा, यार क्या दे दिया, एंट्रोपी, एंट्रोपी से वैसे ही डर लगता है बच्चों को, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी का ग्राफ दे दिया है, ये ग्राफ तो कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देते ना, ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, ठीक है, अगर थोड़ा सा आपको ग्राफ के बारे में आइडिया तो क्वेश्चन इजी है। तो क्वेश्चन में इस चीज की वैल्यू पूछी गई है, और क्या क्या दिया हुआ है, एक अपने पास सिस्टम है, उसको हम 1 से 2 पे लेके जा रहे हैं, मतलब एक प्रोसेस है, मतलब यहां से लेके यहां तक जा रहे हैं, उसको फर्स्ट प्रोसेस बोल रहे हैं, और ये सेकंड प्रोसेस है, और बोला है कि इसमें जितना वर्क डन लग रहा है, फर्स्ट में जितना वर्क डन है और सेकंड में जितना वर्क डन है, वो दोनों इक्वल है। बात आ रही है समझ में? अब कैसे करना है क्वेश्चन, तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे? वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, कोई और भी प्रोसेस है, तो पहले हम देखें प्रोसेस कौन सा है। तो आप यहां देखिए यार, इस वाले यहां से ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो मतलब कुछ चीज सेम है, क्या सेम है,
एंट्रोपी सेम है। एंट्रोपी सेम कब होती है? सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, ये देख रहे, ध्यान रखना, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पे चलते हैं पहले प्रोसेस में। फर्स्ट प्रोसेस की बात करें, फर्स्ट प्रोसेस की बात करें, वहां एंट्रोपी ऊपर ऐसे नीचे आ रहा है, तो एंट्रोपी सेम है। एंट्रोपी क्या है? सेम है। एंट्रोपी सेम है मतलब क्या? क्या मतलब है इसका? आपको पता है एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। अगर ये सेम है मतलब डेल्टा एस, सॉरी, अगर ये सेम है मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये डेल्टा एस क्या है? जीरो है। डेल्टा क्यू रिवर्सिबल जीरो है, मतलब आप बोल सकते हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्यू जीरो मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस। बात आई समझ में? नहीं आई? देखो फिर से समझाता हूं। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, एंट्रोपी सेम है, एंट्रोपी सेम है, एंट्रोपी सेम है, एंट्रोपी सेम, एंट्रोपी का फॉर्मूला देखा, एंट्रोपी सेम है मतलब डेल्टा एस जीरो। डेल्टा एस जीरो कब होगा? जब डेल्टा क्यू जीरो होगा। डेल्टा क्यू जीरो कब होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में, ठीक है। अगले सेकंड प्रोसेस में क्या हो रहा है? कुछ तो सेम है ना, इंटरनल एनर्जी U बाय आर, आर तो कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? इंटरनल एनर्जी। सेकंड प्रोसेस की बात करें तो डेल्टा यू जीरो है, डेल्टा यू जीरो है, इसका मतलब क्या? डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी, है ना। अगर डेल्टा यू जीरो हो गया तो डेल्टा टी भी जीरो है। डेल्टा टी जीरो है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है यार, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अभी आपको ये तो आइडिया लग गया कि यहां से यहां एडियाबैटिक है, यहां से यहां आइसोथर्मल है, और दोनों के लिए वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ठीक है। और दोनों का वर्क डन इक्वल है, तो वर्क डन 1 इज इक्वल टू वर्क डन 2, और वर्क डन अपना ये सेकंड वाला है, ये आइसोथर्मल है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? nRT ln फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम क्या है? V3 है यार, याद रखना, V2 नहीं है, और डिवाइडेड बाय V2, फाइनल बाय इनिशियल। इतनी बात क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब हमें क्या चाहिए? वर्क डन चाहिए एडियाबैटिक में। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे पागल हो जाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाने का अपन को, ठीक है। कैसे करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे जाएंगे, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। कैसा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, डेल्टा यू में चेंज निकालो, वर्क डन आ जाएगा। और डेल्टा यू कहां से निकलेगा? यहां देखो, इस ग्राफ से हम डेल्टा यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यू बाय आर की वैल्यू ऊपर दे रखी है, नीचे दे रखी है इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, वहां से आंसर, आंसर नहीं मतलब डेल्टा यू निकल के आएगा। देखो मैं करके बताता हूं, ये ऐसे दे रखा है, ये यहां से यहां तक, ये जो वैल्यू है 250 है, और यहाँ 450 दे रखी है, किसकी? यू बाय आर की, ठीक है। डेल्टा यू हमें चाहिए, डेल्टा यू मिल गया तो वर्क डन आ जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो हम क्या लिखेंगे? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। यू इनिशियल स्टार्टिंग यहां से हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं हम, ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां जा रहे हैं हम। तो हमें क्या चाहिए? यू फाइनल चाहिए, यू इनिशियल चाहिए। यू फाइनल कितनी है? 450, है ना? गलत, 450 इंटू आर। समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? ये u बाय आर की वैल्यू दे रखी है, u फाइनल अपॉन आर की वैल्यू कितनी है? 450। तो u फाइनल चाहिए, इसको हम उस तरफ लेके बस, और क्या किया मैंने? और कुछ नहीं किया। ऐसे u इनिशियल कितना है? 2250 है, इंटू आर, ये वर्क डन आ गया अपना, सिंपल। कितना आया? -1800 आर इक्वल टू वर्क डन। इसलिए मैं बोल रहा था डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना, यहां जाना था अपन को। -1800 आर इक्वल टू n1 था, तो -RT ln V3। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ट्विस्ट तो यहाँ आएगा अभी, आप रुके रहो 1 मिनट। अरे सॉरी, क्या कर दिया मैंने? 1800 R को काट रहा था मैं, R से R कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। बचा क्या? 1800 इक्वल टू T ln V3 अपॉन V2। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब हमें टेम्परेचर चाहिए बस, और अपना गेम खत्म। हमें टेम्परेचर चाहिए। क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया हो 900 केल्विन, अगर आपने वही टेम्परेचर रख दिया, क्वेश्चन गलत, बिल्कुल गलत। तो कौन सा टेम्परेचर यूज करना है? देखो टेम्परेचर कौन सा दिया हुआ है, यहाँ का स्टार्टिंग वाला, ठीक है। और हमें जो टेम्परेचर चाहिए ना यार, वो है ना आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना है वो टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस था। तो इसमें कितना टेम्परेचर है वो हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पहले टेम्परेचर अलग होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज कर रहा होगा, यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा, तो वो वाला टेम्परेचर चाहिए जो डिक्रीज हुआ है।
वो वाला टेम्परेचर हमें चाहिए, 900 नहीं चाहिए हमें, ठीक है, वो टेम्परेचर हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले यार, कैसे निकाले, यहां से कुछ आइडिया मिल सकता है आपको। डेल्टा यू पता है आपको, डेल्टा यू निकल के आ गया ना, वर्क डन के इक्वली तो है। डेल्टा यू आपको पता है, डेल्टा यू पता है, एनसीवी डेल्टा टी ये भी पता है आपको। डेल्टा यू कितना, -1800 आर, एन 1 है, सीवी दे रखा है 5/2 आर दे रखा है, मे बी, हाँ वही होगा, और क्या होगा, 5/2 आर, बिल्कुल ठीक। ये एन 1 है और सीवी 5/2 आर है, डेल्टा टी चाहिए हमें। डेल्टा टी क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। अब ये इस तरफ ले आए उसको, ये 3600/5 हो गया, और आर, अरे आर तो था ना 1800 आर था, यहाँ पे 1800 आर था, इसलिए तो आर से आर भी काटो, आर को खत्म करो यहां से, 5/2 आर, और टी फाइनल हमें चाहिए, टी इनिशियल कितना है, 900 है ना स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर, हाँ ये कितना आएगा, ये आएगा 5 7 35, 5 दूनी 10 -720 इसका टी फाइनल, इसको उठा लाए यहाँ पे, ये पॉजिटिव हो गया, वो 180 आ गया, ये टी फाइनल है। टी फाइनल माने, समझ रहे हो ना आप कौन से टी फाइनल की बात कर रहा हूं मैं, टी फाइनल माने ये वाला टेम्परेचर, हमने यहाँ पे इक्वेशन लगाई थी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, इनिशियल था, ये वाला टेम्परेचर हमें मिल गया, और यही अपना आइसोथर्मल का टेम्परेचर है, ये मिल गया तो काम खत्म अपना। हमारा, हम कहाँ थे, हाँ ये टेम्परेचर यहाँ रखना था, 1800 डिवाइडेड बाय कितना आया था भाई, कितना आया था, एक बार उसको भी देख लेते हैं, 180 आया है ना। टी फाइनल कितना है, 180, 180 को यहाँ डिवाइड फिर लाओ, ln V3/V2, ये 10 आया आंसर, 10 आंसर है, बस क्वेश्चन खत्म। लास्ट क्वेश्चन है अपना, और इजी क्वेश्चन है, थोड़ा फिजिक्स इसमें डाल दिया है, फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ केमिस्ट्री में डाल दिया है। क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा यूनिट से आपके साथ खेलेगा वो। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन है अपना, हीलियम का एटम है, उस पे एक फोटोन आके एब्जॉर्ब हो गया है, मोमेंटम कंजर्व है, आंसर बता दो बस, क्वेश्चन इजी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया है। अरे यार कहाँ गया वो, हाँ आ गया, सॉरी। तो अपन के पास क्या है, हीलियम का एटम है ये, और यहां से एक फोटोन आ रहा है, ठीक है, और टकराया और एब्जॉर्ब हो गया, मतलब एब्जॉर्ब हो गया इसके अंदर आके। हमसे पूछा गया कि इसकी, ये जो हीलियम एटम है, इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, और बोला गया कि मोमेंटम कंजर्व, तो हम सीधा मोमेंटम कंजर्व तो हम लिखें P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल, या P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, एक ही बात है। हाँ, इनिशियल मोमेंटम को निकालते, इनिशियल मोमेंटम किसका होगा, एक तो इसका, तो कैसे निकाले, मास ऑफ हीलियम एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ हीलियम एटम, सॉरी वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम, ठीक है, और वो भी इनिशियल वाली, प्लस स्टार्टिंग में ये है ना, एक तो हीलियम का एटम है, एक ये फोटोन आ रहा है, फोटोन का मोमेंटम चाहिए, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, अगर ये फॉर्मूला लगाओ गलत हो जाएगा, तो कैसे करना है, h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा, ये पढ़ा होगा ना, h अपॉन p, तो वही फॉर्मूला, वहां से हम क्या निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, p मोमेंटम, ठीक है। फाइनल की बात कर ले, टोटल मास, क्योंकि अब ये एब्जॉर्ब हो गया, और टोटल फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये एब्जॉर्ब हो गया, पूरा एक सिस्टम बन गया, तो उस पूरे का मास और वेलोसिटी। अब हम क्या करते हैं, इसको यहीं रखते हैं, m टोटल v फाइनल माइनस m v इनिशियल। अब आपको पता है इसका जो टोटल मास है, टोटल मास में क्या होगा, मास ऑफ हीलियम एटम प्लस मास ऑफ फोटोन, और आपको पता है मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास कितना है, 0 है यार, ये इसी के इक्वल है, कुछ और नहीं था यहाँ, तो ये दोनों चीज सेम है, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, तो हम ये लिखते हैं m इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो हम डेल्टा v लिखेंगे इसको, ये h अपॉन लैम्डा, काम खत्म अब, है ना, डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू लैम्डा। इतनी बात क्लियर है, गेम यहीं से स्टार्ट होगा। अब यहाँ अगले, इसलिए मैं अगले पेज पे करता हूँ, डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन m लैम्डा, इतनी बात क्लियर है भाई, पक्का, ठीक है। 6 इंटू 6 10 की पावर माइनस 34, लैम्डा 330 नैनोमीटर है, मीटर में कर दिया 10 की पावर माइनस 9, क्लियर। मास चाहिए हमें, मास किसका चाहिए, किसका चाहिए, हीलियम एटम का चाहिए, कितना होता है, 4 क्या ग्राम, नहीं 4 ग्राम नहीं है, तो क्या 4 AMU, एक हीलियम एटम का चाहिए हमें, एक हीलियम एटम का मास चाहिए 4 AMU, ठीक है।
1 हीलियम एटम का निकाल रहे हम तो 4 mu। 1 mu कितना होता है? 1 mu होता है 1/Na ग्राम। क्लियर? 1 mu होता है 1/Na ग्राम, तो 1/Na ग्राम। जिसने यहां तक क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्विस्ट यही है, ट्विस्ट यही है। आप सोच रहे होंगे यार इसको हमने ग्राम में कर दिया बस हो गया अब काम खत्म, नहीं, ट्विस्ट यही है। सारा गेम यहाँ यूनिट से खेला गया है। ऐसे यूनिट में करना था, इसको केजी में करना था, क्योंकि सारी चीज ऐसे यूनिट में है, तो इसको हम ऐसे यूनिट में करेंगे Na, और क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, केजी में कन्वर्ट करके, तब इसको यहाँ पे रखना था ब्रो, तब यहाँ पे रखना था। तो कैसे करेंगे? 4 × 10⁻³ और Na गया ऊपर, Na कितना है 6 लेना है बस हमें 10⁻23। ठीक है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6.6 जो नंबर वंबर है उनको एक साथ रख लेते हैं, पावर को एक तरफ भेजते हैं। 10⁻34 और ये हो गया 23 + 9 + 3। ठीक है भाई, अब यहाँ थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ से हटाओ, 10 लाए, 11 × 6 = 66, ये 30। ठीक है भाई, और इसको 3 से काट दो, थोड़ा इजी रहेगा। 2 आ गया, सही है ना? 2 दूनी 4, 2 3 6, और 2 से 2 कटा, 3/100 आया। ठीक है, पावर देखो यहाँ 23 और 9 32, 32 3 35, और -35 में से 1 गया, 1 बचा। 1 यहाँ से यहाँ कट गया, 3/10 आ गया क्या? मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी और पूछा गया, इसको सेंटीमीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर। तो मीटर है, सेंटीमीटर में करना है, 100 से मल्टीप्लाई मारो यार, और क्या, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये 30 आ गया, 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, काम खत्म। बस यही था, बस इतना ही था यार। आपका जो ओवरऑल पेपर था, इजी भी नहीं बोल सकते, देखने में इजी था, लेकिन जो ट्विस्ट थे बड़े मजेदार थे। जेईई के पेपर की सबसे मस्त बात तो यही होती है ना, क्वेश्चन इजी दिखता है लेकिन इजी होता नहीं, उसमें जो ट्विस्ट होते हैं वो भी बड़े मजेदार होते हैं। ठीक है, आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, मतलब किसी भी एक्सप्लेनेशन में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।